Assalamu alaikum and welcome back to Nova Research Internship 2024. Our instructor has joined us. Dr. Sadaf is with us. So, mm, can you hear me, ma'am? Yes, Walaikum Salam. Yes, I can hear you. The floor is open for you, ma'am. You can deliver your lecture. Thank you. Thank you so much, Mr. Atikur Rahman. Okay. As Mr. Atik introduced myself is Dr. Sadaf Akbar, and I'm your student's facilitator. And today our topic is how to write a review article. Okay. A review article, how can we write and what is the components and it's about 2 days session. Today's we discuss about the components of the review article, means how to write, what were abstract, introduction, material methods, and other parts of the review article. And tomorrow we will discuss about the AI. What how can we use AI in the for the writing of review article. Okay. So today let me, uh, Mr. Ati, can you make me a host so I can share my screen? Just a second, ma'am. Yes. Because nowadays it's a every in research we use AI in every writing process. In uh, if we say about the original article, if we say about the thesis, your review article, in anything we use in AI, but tomorrow we will discuss AI with some ethical points of view also and the use of AI in review article. But okay, I hope you all can see my screen. Let me make them more visible for you. Yes, ma'am, it's visible. Okay, now I'm going to slide to the slideshow. Okay, now is it okay? Yes, ma'am, it's okay. Okay. Kindly सब लोग अपना mic mute रखें. Yes, please. It's request to all participants to mute your mic so you can hear me clearly. Otherwise, disturbance will occur. Okay. Today our topic is how to write a review article. As I'm saying, what is the review article? The review article is a research study about research studies. ठीक है ना? इसमें हम जो है first of all is a definition is a critical constructive analysis of the literature in a specific field through summary, classification, analysis and comparison. ठीक है. ये जो रिव्यू आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो रिव्यू आर्टिकल इज अ क्रिटिकल बेसिकली वी gather different type of research paper for a one topic. Suppose if you are going to research about diabetes, I'm not going to research a new thing. I'm not going to do any hospital. I'm not going to work any type of patient, but I'm just doing compiling the different types of research papers about diabetes, and then got some new information, got some literature from there, extract some information from there, and then we are putting in our uh, uh, way of writing. Can I? It's called a review paper. ठीक है. एनालाइज ऑफ द लिटरेचर इन स्पेसिफिक फील्ड, तो उसको हम जो है समरी के जरिए भी राइट कर सकते हैं. उसकी हम डिफरेंट जो है क्लासिफिकेशंस को भी क्रिएट कर सकते हैं. और विद द कंपैरिजन हम जो है इसमें डिफरेंट स्टडीज को जो है कंपैरिजन उसकी भी हम कर सकते हैं. ठीक है.
तो a scientific test relying on previously published literature or data. A review article is not a very new thing, it's not a very novel idea. बट रिव्यू आर्टिकल में जो है हम जो जो प्रीवियसली जो हमारे पास प्रीवियस जो रिसर्चर्स थे, उन्होंने जो डेटा पब्लिश किया हुआ था, जो लिटरेचर पब्लिश किया हुआ था, उसी को जो है हम लेकर अपनी वर्डिंग्स में अपने एक उसको अपनी एक थिंकिंग के जरिए, क्या देखिए, अब एक सपोज अगर जैसे मैं डायबिटीज एग्जांपल लूं, ठीक है, अब जैसे सपोज डायबिटीज पर है, अब यहाँ जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत से लोग डायबिटीज पर काम कर रहे होंगे, कोई भी कर रहा होगा, कोई डायबिटिक फुट इन्फेक्शन पे कर रहा होगा, कोई डायबिटिक जो है रेटिनोपैथी पे कर रहा होगा, कोई इसकी जो है प्रिवलेंस को देख रहा होगा। तो सबका जो है नुक्ता नजर और सबका उसमें काम करने का तरीका कार या सबका पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिफरेंट होगा, ठीक है। तो मैं जो है डायबिटीज के, अगर मैं सिंगल जो है डायबिटीज पर जब मैं काम कर रही हूँ, तो मैं सबको एक कंपाइल करके उसको एक जगह मैं जो है गैदर करके एक पेपर मैं उसको जो है मैं कवर कर लूंगी। A scientific test relying on अच्छा a stand alone publication, ठीक है, जिसमें आपने जो है तमाम जितने भी आपके पास बहुत सारे जो है आपके पास आइडियाज थे, बहुत सारे रिजल्ट्स थे, उनको आपने कंपाइल करके एक जगह सेट कर दिया, ठीक है। तो दिस इज नॉट ओरिजिनल वर्क, ये ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल नहीं होता। जैसे हम ओरिजिनल रिसर्च आर्टिकल लिखते हैं जिसमें हम पूरा जो है एक मटेरियल मेथड, एक पूरा स्टडी डिजाइन करते हैं कि हम 250 या फिर 500 सैंपल्स लेंगे, हम जो है इसमें क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इतने हम जो है ये हम सर्वे बेस कर रहे हैं, इतने हम पेशेंट्स के पास जाएंगे, उनसे हम जो है सैंपल लेकर या डेटा लेकर हम कंपाइल करेंगे, नहीं, ठीक है, इसमें हम जो है पेपर्स गैदर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों, वाई इज रिव्यू पेपर वेरी पॉपुलर, ठीक है, ये बहुत से जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, हम जैसे हम जो यूनिवर्सिटी लेवल पर भी बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, एमएस के स्टूडेंट्स होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं जैसे रिसर्च लिखना, जो है रिव्यू आर्टिकल को बहुत से स्टूडेंट जो है स्टार्टिंग अपनी जो है रिव्यू आर्टिकल से करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें उनको न्यू ज्यादा एफर्ट नहीं नहीं करनी होती है, सच कोई न्यू इसमें जो है चीजें नहीं करनी होती। तो it provides extensive review of previously published literature and to put them into perspective. अब आप सोचे सर, ठीक है, कि मेरे पास 10 आर्टिकल्स थे, उसको मैंने कंबाइन करके एक जगह कर दिया, तो वो मेरा जो एक आर्टिकल है वो उन 10 आर्टिकल्स के बराबर होगा, ठीक है, कि उसमें जो है जो उन 10 आर्टिकल्स से मुझे मुझे डेटा मिल रहा है, वो पूरा डेटा कंपाइल करके मैंने एक आर्टिकल में उसको जो है कर दिया, कहते हैं ना उर्दू में दरिया को, समंदर को दरिया में, उसमें सॉरी, समंदर को कूजे में बंद कर देना, ठीक है। तो हमने जो है 10 रिसर्च पेपर्स के समंदर को एक कूजे में यानी कि एक रिव्यू आर्टिकल में बंद कर दिया, ठीक है। इट ऑफर्स क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ द पब्लिश लिटरेचर, ठीक है। अब जो शख्स उस पर रिव्यू कर रहा है, जो शख्स उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उसमें देखता है कि अच्छा इसमें डिफरेंट उसके उसको फिर इसके डिफरेंट गैप्स नजर आते हैं। हमने तो पेपर पब्लिश कर दिया, हमने तो ओरिजिनल रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया हमारा, ठीक है, बट उसके बाद उसमें क्या पता बहुत सारे गैप्स हो, बहुत सारे ऐसे उसमें जो है फ्लॉज हो, कि जो रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है उसको फिर उसमें जो है नजर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको जो है क्रिटिकली एवेल्युएट करता है। इट क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक, ठीक है, आप उसको जो है उस टॉपिक को समझने में इजी इजी होता है। आइडेंटिफाई गैप इन नॉलेज, अगर उसमें कोई नॉलेज में कोई गैप रह गया है, तो वो जो आपका वो है रिव्यूअर है जो रिव्यू आर्टिकल लिख रहा है उसके ऊपर, वो उसको जो है कवर करने की कोशिश करता है। इट प्रोवाइड्स अ न्यू अप्रोच पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि ये आपको जो है, आप जैसे सपोज अगर जैसे मैं जो है डायबिटीज पर ही मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, अब मुझे जो है कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ कि भाई मैं डायबिटीज के ऊपर किसके ऊपर मैं काम करूँ। तो जब मैं डिफरेंट आर्टिकल को सर्च करूंगी, जब मैं एक रिव्यू आर्टिकल लिखूंगी, तब मैं देखूंगी कि अच्छा डायबिटीज के ऊपर तो मैं इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर काम काम कर सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम करते हैं जनरेट योर ओन आइडिया, फिर हमारा इसमें अपना आइडिया जनरेट होता है दूसरों के पेपर्स को देखकर, ठीक है। रिव्यू पेपर इज मोर देन एनोटेटेड बिब्लियोग्राफीज, ठीक है, कि जो काम पहले हो चुका है उसी को हम जो है इसको दोबारा से जो है कर रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनोटेटेड
bibliographies. You are not trying to list all the published materials. ठीक है। अच्छा, अब मैंने कहा कि मेरे पास सपोज डायबिटीज के ऊपर मुझे जो है 100 के करीब जो है मुझे आर्टिकल्स मिले, ठीक है। तो क्या मैं इसमें 100 के करीब आर्टिकल्स को ऐड करूंगी? आंसर है नो। Okay. But to synthesize and evaluate is so as to provide a new approach or stimulate further research. जो मेरे काम से या जो मैं इसमें मुझे लगेगा कि जो फर्दर फ्यूचर के जो है रिसर्च को, या अगर हम इसमें कोई ऐसा पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव हम उसमें काम कर सकते हैं, तो मैं उसको जो है चूज करूंगी सिंथेसाइज करके। ठीक है, चूज करके उसको स्ट्रेन करके कि सिर्फ वही मैं पेपर्स लूंगी जो आगे जाकर बेनिफिशियल होंगे मेरे लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, आपकी जो है कम्युनिटी के लिए भी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है रिव्यू आर्टिकल्स की टाइप्स होती है, बट जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एक होता है नैरेटिव सिस्टमैटिक रिव्यू, और सॉरी नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल, और एक होता है सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है। अच्छा, नैरेटिव रिव्यू आर्टिकल में हम क्या चीज देख रहे होते हैं? इसमें हम जो है डिस्क्राइब एंड अप्रेज पब्लिश आर्टिकल्स, बट द मेथड यूज्ड टू सिलेक्ट द आर्टिकल्स मे नॉट बी डिस्क्राइब। ठीक है। ये जो है आर्टिकल्स इसमें जो है ये जो है पब्लिश आर्टिकल्स इसमें होते हैं, बट इसमें जो है आपका मेथड्स जो है इसमें सिलेक्ट नहीं किया जाता, मेथड्स को हम इसमें जो है फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है। इसमें हम जब इसी के साथ हम जब सिस्टमैटिक आर्टिकल्स रिव्यू आर्टिकल की बात करते हैं, तो इसमें जो है तमाम क्वेरीज वेल डिफाइन होती है, पर रिव्यू क्वेश्चन हो गया, सेकेंडरी क्वेश्चन और सब ग्रुप एनालिसिस। ठीक है। जो हम जो है रिव्यू क्वेश्चन क्या है कि हम जब रिसर्च करते हैं, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है? हमारा रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, कि हम कौन सा अपना जो है रिसर्च क्वेश्चन बना बना रहे हैं। ठीक है ना, कि हम क्या हमारा रिसर्च क्वेश्चन के जब तक हम अपना रिसर्च क्वेश्चन डिस्क्राइब नहीं करेंगे, इसको एनालाइज नहीं करेंगे, तब तक हम फर्दर रिसर्च नहीं कर सकते। ठीक है। सपोज आई एम गोइंग टू रिसर्च अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ डायबिटीज इन इन कराची। ठीक है, या जो है इन रूरल एरियाज। ठीक है ना। अब उसमें भी फिर मुझे उसको थोड़ा सा फर्दर जो है कस्टमाइज करना होगा कि रूरल एरियाज तो पाकिस्तान में बहुत सारे, तो थोड़ा सा मैं इसको जो है फर्दर फर्दर कस्टमाइज करूंगी रूरल एरियाज इन पंजाब या और इन सरहद। तो ये मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई मैं जो है सिर्फ ये चीज देखने जा रही हूँ कि जो है डायबिटीज के जो परसेंटेज है या डायबिटीज का रेशियो है वो पाकिस्तान में जो है सिंध के रूरल एरियाज में कितना है। ठीक है। तो इसमें जो है क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द लिटरेचर। ठीक है। सिस्टमैटिक रिव्यू में हम जो है इसमें हमारे पास एक क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया होता है, जिसमें हम जो है अपने आर्टिकल्स को इसमें जो है चूज कर रहे होते हैं। ठीक है। इसमें हम जो है मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड सिंथेसाइज ऑफ द डेटा, कि किस तरीके से हमने जो है मेथड के किस तरीके से हमने अपने जो हमारे पास आर्टिकल्स के वो है रिव्यू करने के लिए आर्टिकल्स है, उसको किस तरीके से हमने उसमें जो है उसको एक्सप्लेट किया, किस तरीके से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया उसमें से। ठीक है ना, और फिर हमने उसका जो है डेटा को सिंथेसाइज कर लिया। फिर इसमें हम डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च टू फाइंड ऑल द रिलेवेंट स्टडीज, कि कौन कौन सी इसमें जो है रिलेवेंट स्टडीज पर जो है काम हुआ है। फिर इसमें एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर द क्लिनिकल के जो है क्रिटिकल अप्रेजल फॉर द स्टडीज क्वालिटी। फिर हम देखते हैं कि इसमें जो है स्टैंडर्ड क्या था, फिर हम उसके मुताबिक इसको जो है तो ये एक्चुअली पढ़ा रहे हैं आज। इसके मुताबिक हम जो है इसकी जो है क्रिटिकल इसको जो है वो सेट आउट करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो नैरेटिव रिव्यूज होता है उसकी जो है यूज या एप्लीकेशंस क्या होता है, वो बेसिकली जो है जर्नल डिबेट्स के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। या फिर जो है जो प्रीवियस स्टडीज एट द करंट लैक ऑफ नॉलेज के अगर जो है उसमें कोई कमी बेशी है, कोई इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इसमें ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है या भी ये गैप मौजूद है, तो उसको फिल करने के लिए हम जो है नैरेटिव रिव्यूज इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है। या फिर डिफरेंट हम जो है डिबेट्स में या डिफरेंट हम जो है अपनी ऐसे राइटिंग में उसको हम जो है यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। रेशनल्स फॉर फ्यूचर रिसर्च। ठीक है ना, कि किस तरीके से अब हमें जो है फर्दर इसमें जो है रिसर्च को कंटिन्यू करना है, उसके लिए भी हम जो है नैरेटिव रिव्यू इस्तेमाल करते हैं। बट सिस्टमेटिक रिव्यू का हम कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्या उसका जो है यूजेस है?
identify, assess and synthesize the literature gathered in response to a specific query। ठीक है ना। सिस्टमेटिक रिव्यू क्या है कि हम जो है एक स्पेसिफिक क्वेरी के लिए हम उसको पूरे जो है एक जर्नल डिबेट में लेके नहीं जाते। हम उसको बहुत जो है एक वो रखते हैं स्पेसिफिक, बहुत प्रिसाइज करके उस पर हम जो है वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। We collect what is known about a topic and identify the basis of the knowledge। जो उसमें आपके पास जो टॉपिक है उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वहां पर जो है कलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी जो है बेसिकली इसकी जो है लिमिटेशंस क्या होती है, जो नैरेटिव रिव्यूज की। ये द assumptions and the planning are known often knows। ठीक है। इसमें हमें जो है कोई जैसे देखिए जब हम इसको जो है जनरल डिबेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसमें किसी किस्म की जो है कोई ऐसी ऐसा हम प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, ऐसे जब उसमें कोई ऐसा डेटा ऐड नहीं कर रहे हैं, वो बस हम जो हमें ऐसे आर्टिकल लिखना है तो हम डिफरेंट आर्टिकल्स को जो है एक जगह गैदर करके हम उसको एक पैराग्राफ की फॉर्म में या एक पेज की फॉर्म में उसको हम जो है गैदर कर रहे होते हैं। ठीक है। बट जब हम सिस्टमेटिक रिव्यूज की बात करते हैं तो उसमें हम जो है मुकम्मल डिफाइंड एक क्वेरी होनी चाहिए हमारे पास। ठीक है। सर्च टर्म्स हैं। ठीक है। और फिर पूरा उसका एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। तो ये बेसिकली इसमें जो है ये फर्क होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बिफोर डिसाइडिंग टू राइट अ रिव्यू पेपर, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आप अपने आप से करने वाले हैं। ठीक है। यू आर गोइंग टू आस्क दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। Do I know my stuff sufficiently? Stuff means your research question। ठीक है ना। Your research paper कि आपको मालूम है कि आप इस टॉपिक पे काम करने जा रहे हो, तो डू यू नो वेल इनफ, आपको उसके बारे में जो है तमाम डिटेल्स मालूम है कि आप उसके बारे में ये स्टडी कर रहे हैं। विच जर्नल टू पब्लिश बाय रिव्यू। ठीक है ना। कि आप उसमें कौन से आर्टिकल कौन से जर्नल में उसको जो है आप जो है पब्लिश करने जा रहे हो। व्हाट इट वुड इट बी कंसिडर एट ऑल। ठीक है ना। कि जो आप काम देखिए रिव्यू आर्टिकल, व्हेन वी आर गोइंग टू राइट अ रिव्यू आर्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट इट्स important for us, important of your community, important for your locality। ठीक है ना। कि आप जिस लोकेलिटी के लिए जिस कम्युनिटी के लिए काम करने जा रहे हो वो उसके लिए बेनिफिशियल है भी क्या नहीं है। ठीक है। तो इट वुड बी कंसिडर्ड ऑल कि आप जब उसको किसी पेपर में भेज रहे हैं तो वो कंसिडरेबल होगा या फिर it will become a food of your pen। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो चीज लिखने जा रहे हैं, वॉट एवर, if you are going to write a research paper, if you're going to write a review article, if you're going to write a thesis, dissertation, anything, it worthy or worthless। okay। अच्छा, अब हम अब what is literature? A literature of all the scholarly writings on a topic। okay। of topic anyway, if you are a medical student you can write about the diabetes, TB, hepatitis, dengue, chikungunya, malaria, heart disease, kidney disease, whatever। ठीक है ना। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से हट करें तो फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं तो उसमें भी आप बहुत से टॉपिक्स को जो है करेक्ट कर सकते हैं। तो आपके टॉपिक के मुताबिक जो आपके पास कलेक्शन मौजूद है लिटरेचर वो स्कॉलरी राइटिंग्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्कॉलरी राइटिंग्स, नॉट any unauthentic website, not from any unauthentic book, not from any unauthentic magazine or any unauthentic source, only scholarly writings which is authentic with the author name। ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड द लिटरेचर। अब व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू। अब हमने जो लिटरेचर हमारे पास था, जो कलेक्शन मौजूद थी, उसमें से हमने लेकर a systematic method for identifying, evaluating and interpreting the work produced by researchers, scholars and practitioners। ठीक है। अब जो हमारे पास 100 का एक लिटरेचर मौजूद है, मेरे पास 100 रिसर्च पेपर्स हैं जिसको मैं कह रही हूँ कि मेरे पास लिटरेचर मौजूद है। ठीक है। तो अब मुझे उसे जो है लिटरेचर रिव्यू लिखना है, तो मैं उसको लिखने को मैं क्या बोल रही हूँ,
a systematic method for identifying, evaluating and interpreting the work. ठीक है, जो मेरे पास जो 100 पेपर्स मौजूद है उसमें से मैं जो है उसको आइडेंटिफाई कर रही हूँ, उसको मैं इवेल्युएट कर रही हूँ एंड देन मैं इसको इंटरप्रेट कर रही हूँ बाय माय ओन वर्ड्स. ठीक है, बाय माय ओन वर्ड्स. So this is called the literature review. Your own idea will connect to the developing knowledge network in the field. अच्छा, लिटरेचर रिव्यू जब हम लिखते हैं उसमें हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वी आर डूइंग अ कॉपी पेस्ट प्रोसीजर और वी आर गोइंग टू डू जस्ट कहना चाहिए कि सिर्फ उनका काम लेकर हमने यहाँ पर जो अपने पास प्रिंट कर लिया. ठीक है, जैसे मैंने कहा कि योर ओन आइडिया, ठीक है ना, अब आप उन 100 पेपर्स को कलेक्ट करके आप अपना आइडिया के मुताबिक एक सेंट्रल आइडिया आप प्रोड्यूस करने जा रहे हैं. ठीक है, लिटरेचर इज अबाउट टेलिंग अ स्टोरी, kind of a chain story where each writers start with a partial story created previously by others and expand on it. जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ डायबिटीज की. ठीक है ना, अब डायबिटीज पे मेरे पास 1000 के करीब 100 के करीब पेपर्स मौजूद. उसमें हर आर्टिकल में एक डिफरेंट स्टोरी मौजूद है. ठीक है ना, हर स्टोरी, अब हर आर्टिकल एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है, तो क्या है, दिस इज अ चेन, स्टोरी की एक चेन है वो. ठीक है, अब उसमें हम क्या कर रहे हैं, द एग्जिस्टिंग लिटरेचर इज अ स्टोरी सो फार. अब हम उसको जो है एक जगह कनेक्ट कर रहे हैं. नाउ हाउ कैन आई कनेक्ट द रिव्यू आर्टिकल, द चेन ऑफ द रिव्यू आर्टिकल. हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रीड पब्लिश्ड वर्क. ओके, यू कैन राइट until you read. ठीक है ना, जब तक आप रीड नहीं कर रहे हैं आप राइट नहीं कर सकते. आपको लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है. चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं, आप चाहे न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं, आप चाहे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप चाहे कोई पोइट्री लिख रहे हैं, कोई नज्म लिख रहे हैं, कोई गजल लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, वॉट एवर यू आर राइटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड. ठीक है, आपको उसके तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस मालूम होने चाहिए कि किस तरीके से कोई चीज लिखी जाती है. और वो रूल्स रेगुलेशन मालूम करने का तरीका क्या है, पढ़ना, रीड. ठीक है, रीड अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंट एंड वेब बेस्ड मटेरियल्स. ठीक है, आपके पास चाहे प्रिंटिंग फॉर्म में है, आजकल जैसे लोग अपने, जैसे सपोज बहुत सारे रिसर्चर्स होते हैं, उनको एक टॉपिक है, उनको जैसे सपोज हाई ब्लड प्रेशर पर उनको रिव्यू आर्टिकल लिखना, तो हाई ब्लड प्रेशर पर बहुत सारे जो है अपने अपने जो रिसर्च आर्टिकल्स कलेक्ट करके एक फोल्डर बना लेते हैं. लेकिन स्क्रीन टाइम आपका उससे इंक्रीज हो जाता है. ठीक है ना, तो क्या होता है, फिर उससे बचने के लिए स्टूडेंट्स प्रिंट आउट अगर आप ले लेंगे तो आप उसको फिर जो है प्रिंटिंग फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, फिर उसको इंटरप्रीट करना. इंटरप्रीट मीन्स क्या, कि अब मैंने एक आर्टिकल पढ़ लिया ना, अब वो लाजमी नहीं है कि अब उस आर्टिकल्स में से मैं तमाम चीजें मेरे काम की हूँ, या उस आर्टिकल्स में से तमाम चीजें मैं अपने रिव्यू आर्टिकल में उसको मैं ऐड करूं. उसमें से मैं कुछ पॉइंट ले सकती हूँ, मे बी एक रिसर्च आर्टिकल से मैं 1 पॉइंट दूं, सेकंड से मैं 2 पॉइंट ले सकती हूँ, थर्ड से मैं 3-4 पॉइंट ले सकती हूँ. इट्स अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट. ठीक है ना, explain the significance and interpret the evidence presented in each piece of literature. means each research paper. ठीक है, नॉट सिंपली लिस्टेड व्हाट अदर्स हैव रिटन. ठीक है, हम ये नहीं लिख रहे हैं कि उन्होंने क्या लिखा, हम लिख रहे हैं कि उनको अपने वर्ड्स में, अपनी मीनिंग्स में हम क्या समझकर हम जो लिख रहे हैं. ठीक है, उसके हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं. फिर हम उसको सिंथेसाइज करने जा रहे हैं. इट मीन्स क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड होल कोहेरेंट आर्गुमेंट ऑफ द टॉपिक दैट यू आर रिव्यूइंग. ठीक है ना, सिंथेसाइज कैसे करेंगे इसको हम, क्रिएशन ऑफ एन इंटीग्रेटेड होल. ठीक है, पूरे पेपर को हम उसको किन वर्ड्स में अपने उसको
हम लिखते हैं ना, जैसे कोई भी पोयम है, कुछ है, तो लिखते हैं ना सेंट्रल आइडिया, कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस स्टोरी। तो दिस इज द सेंट्रल आइडिया, सिंथेसाइज इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रिसर्च पेपर। फिर उसके बाद आपका जो है लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है। इट इज पॉसिबल टू रीड ऑल द रिसर्च एवर पब्लिश्ड इन योर एरिया। ठीक है, सपो अगर मैं पबमेड पे ही ऐड करूं डायबिटीज, तो मेरे से इतने सारे पेपर्स ओपन हो जाएंगे। तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर तमाम पेपर्स को रीड कर सकूं? नहीं। तो मुझे उसको थोड़ा सा कंसाइज करना होगा, कीवर्ड्स डालने होंगे, उसको थोड़ा सा देखना होगा कि अच्छा ये रिसर्च पेपर मेरे काम का है, दिस इज नॉट। ठीक है, द की इज बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू रीड। ठीक है, ये नहीं कि सब पेपर्स पढ़े जा रहे हैं, 1000 पढ़ लिए मैं, अभी तो मेरा एक साल से पेपर पढ़ने में लग गया। वाह भाई। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बी सिलेक्टिव, आपको पता होना चाहिए कि आपके कीवर्ड्स क्या है। डायबिटीज पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आप जर्नल डायबिटीज पे भी काम कर रहे हैं। तो अगर आप डायबिटिक फुट इन्फेक्शन पे काम कर रहे हैं तो ये योर कीवर्ड इज डायबिटिक फुट इन्फेक्शन। अगर आप डायबिटिक फुट इन्फेक्शन में भी किसी एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं, आप क्लेप्सिला पे काम कर रहे हैं, दिस इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो आप जो है सिर्फ क्लेप्सिला से रिलेटेड पेपर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर पर काम कर रहे हो तो हाई ब्लड प्रेशर इज अ वेरी बिग बिग फील्ड। ठीक है ना, इसमें भी आपको बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर में आप क्या चीज स्टडी कर रहे हो? ठीक है, उसमें आप जो है हाँ, जो है खाली बस जो है प्रिवलेंस चेक कर रहे हो, डाइटरी फैक्टर्स चेक कर रहे हो, क्या चीज आप इसमें चेक कर रहे हो। तो बी सिलेक्टिव इन व्हाट यू रीड, और एल्स यू विल गेट ड्रॉन इन टू मच इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, अदरवाइज क्या होगा, आपके पास एक इंफॉर्मेशन का समंदर आ जाएगा, इट्स अ सी ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, और फिर आप उसमें क्या हो जाओगे, ड्रॉन हो जाओगे, उसमें डूब जाओगे। ठीक है, तो क्या है, बी सिलेक्टिव, फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग द इसेंशियल फ्रॉम द इररिलेवेंट। ठीक है, फिल्टर करना है और सॉर्टिंग करना है उसको, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको लिटरेचर मिल जाए। अब सर्चिंग एंड रीडिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ रीड करे जा रहे हैं, सर्च किए जा रहे हैं। भाई सर्चिंग में लगे हुए हैं कि 1000 पेपर्स जमा कर लिए, 100 पेपर्स कलेक्ट कर लिए, बट व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट? ठीक है, तो हमें इसके मुताबिक इसको जो है फॉलो करना चाहिए। मोर स्पेसिफिक, मोर रिसेंट। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए क्वालिटी क्वांटिटी ऑफ रिलेवेंट पब्लिकेशंस। आपने क्वांटिटी देख ली कि भाई आपको इतनी क्वांटिटी। फिर जर्नल टेक्स्ट इसमें हो गया, encyclopedia हो गया, रिव्यूज हो गया। ठीक है, हिस्टोरिकल सेमिनार पेपर्स हो गए। ठीक है, बट फील्ड स्पेसिफिक पेपर्स, सबसे हाई पर क्या आपके पास क्या होना चाहिए, फील्ड स्पेसिफिक पेपर्स। जो मैंने कहा ना, दिस इज द ऑल पेपर्स इज ऑथेंटिक, ऑथेंटिक सोर्स से लिए हुए हों और ऑथेंटिक पेपर। ऑथेंटिक से मुराद ये है, मीनिंग ये है कि वो आपने किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से लिए हों। ठीक है ना, ऐसी वेबसाइट से ना लेनी हो जिस पर उसका कोई कोई रेफरेंस मौजूद ना हो। ठीक है, एंड देन लेस स्पेसिफिक, लेस रिसेंट। ठीक है ना, मोर स्पेसिफिक, मोर रिसेंट। हमें किसकी तरफ जाना है, मोर स्पेसिफिक, मोर रिसेंट। देखिए मोर स्पेसिफिक क्या हो गया कि भाई टॉपिक के मुताबिक। ठीक है ना, मेरा टॉपिक ये है, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द पब्लिक रिसर्च पेपर ऑन दिस। ठीक है, बट मोर रिसर्च क्या है, देखिए when we are going to do research in any topic, सपोज मैंने एग्जांपल दिया आपको, डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर, HIV, वॉट एवर एनी फील्ड। ठीक है ना, तो व्हेन वी आर गोइंग टू चूज द मोर रिसेंट, सो यू आर गोइंग टू establish a concept of the research paper is more practical। ठीक है ना, मोर प्रैक्टिकल फॉर योर कम्युनिटी, मोर प्रैक्टिकल फॉर योर सोसाइटी। Suppose if I am choosing a research paper which has published in 80s or 90s,
what is the value of this paper this era. हम उसको जो है एक रेफरेंस, एक इंट्रोडक्शन के लिए, एक हिस्ट्री बैकग्राउंड के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड दिस रिसर्च पेपर इन माय रिव्यू आर्टिकल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि दिस इज वर्थलेस नाउ। ठीक है, दिस इज वर्थलेस नाउ। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी मेडिकल फील्ड में देखें, आपकी जो रिसर्च की फील्ड होती है ना, उसमें जो है डेली बेसिस पर, बल्कि आई मस्ट से मिनट टू मिनट्स उसमें चेंजेस हो रही होती हैं, रिवोल्यूशन आ रहा होता है। ठीक है ना? मेडिकल की फील्ड की अगर बात करूं, एनी फील्ड की अगर मैं बात करूं, फिजिक्स की बात करूं, तो कभी हम मून में बात कर रहे हैं, इतने स्टार्स की बात कर रहे हैं, इतने इतने गैलेक्सीज की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात करूं, उसमें भी जो है डेली बेसिस पर चेंजेस आ रही होती है। तो जो है आपकी जो रिसर्च फील्ड है इज गोइंग टू चेंज इन एवरी मिनट एंड एवरी सेकेंड। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल रिसेंट पेपर्स को जो है हम उसमें जो है दिखाएं, शो करें, उसको उस पे उसके बारे में डिस्कस करें, ताकि हम कोई न्यू इंफॉर्मेशन अपने रीडर तक उसको जो है हम पहुंचा सकें, अपनी कम्युनिटी को दे सकें। देखिए, सबसे पहले जो है अभी मैंने आप शुरू में भी आप लोगों से कहा था कि रिसर्च का फायदा किसको होता है और क्यों होता है। रिसर्च का फायदा, हम चाहे जो है ओरिजिनल आर्टिकल लिख रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, लैब में रिसर्च कर रहे हैं, बाहर रिसर्च कर रहे हैं, क्वालिटेटिव कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ रिसर्च is going to beneficial for your society। आपकी कम्युनिटी को क्या फायदा हो रहा है? अंदर लैब में आप जितना काम कर रहे हो वो वर्थलेस है अगर आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। आपसे मुराद आपकी कम्युनिटी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा, आपके जो है आपके पीपल को, आपकी जो लोग हैं उससे उनको कोई किसी किस्म का फायदा नहीं पहुंच रहा। ठीक है ना? तो लेस स्पेसिफिक हमें जो हमारे पास वो है उसको लेस रिसेंट। ठीक है ना? हमें जाना किस तरफ है? मोर स्पेसिफिक एंड मोर रिसेंट एंड फील्ड स्पेसिफिक पेपर्स। जहाँ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं आई विल आंसर इन द एंड। ठीक है? अच्छा, सर्चिंग एंड रीडिंग स्ट्रेटेजी। अब दिस इज एग्जाम्पल। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जिलेटिन। ठीक है ना? ये एक हमने जो है इसको, अच्छा सपोज सबसे पहले हमने एक टॉपिक रखा क्या? हलाल जिलेटिन इन फूड इंडस्ट्री। हलाल जिलेटिन इन फूड इंडस्ट्री, दिस इज अ ब्रॉड टॉपिक। हलाल जिलेटिन अल्टरनेटिव्स इन इंडस्ट्री। ठीक है ना? फिर हमने उसको मजीद थोड़ा सा एलिब्रेट किया। देन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जिलेटिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है अपने टॉपिक को कस्टमाइज करके हम उसको कर सकते हैं। अच्छा, 10 इसमें जो है सैंपल सिंपल रूल्स हैं लिटरेचर रिव्यू के। इसके बाद हम जो है जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफाइन अ टॉपिक एंड ऑडियंस। आपका टॉपिक क्या है? सबसे पहले तो टॉपिक, किस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं, एंड ऑडियंस कौन है। सर्च एंड रिसर्च द लिटरेचर। ठीक है ना? लिटरेचर यू हैव टू सर्च एंड उस पर रिसर्च करनी है। टेक नोट्स व्हाइल रीडिंग। ठीक है ना? हमें से बेशतर लोग जब रिव्यू अपना जब रिसर्च पेपर स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो कहते हैं अच्छा ये पॉइंट सही है, तो उसमें से हम नोट्स बना लें। ठीक है ना? आप जब रिव्यू जब कोई भी पेपर पढ़ रहे हैं, हम देखेंगे अच्छा ये टॉपिक इसमें जो है हमारे लिए वर्दी है, इस पर हम काम कर, ये टॉपिक हम अपने पेपर में ऐड कर सकते हैं, तो उसको साथ साथ लिखते जाए। ठीक है, ताकि वो फिर आपसे कोई पेपर मिस हो जाए या वो पॉइंट आपके जहन से निकल जाए इससे पहले। ठीक है, चूज द टाइप ऑफ रिव्यू यू विश टू राइट। आप किस टाइप का जो है रिव्यू आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं। है ना? कीप द रिव्यू फोकस्ड बट मेक इट ब्रॉड इंटरेस्ट। है ना? फोकस होना चाहिए कि अगर मैं डायबिटीज पे काम कर रही हूँ तो वो डायबिटीज पर ही रिव्यू होना चाहिए, उसको यहाँ वहां भागना नहीं चाहिए कि वो आधा मैंने डायबिटीज पे लिखा, आधा मैंने जो है HIV पर लिख लिया, आधा मैंने जो है टीबी पर लिख लिया, लो भाई हो गया मेरे रिव्यू आर्टिकल। ठीक है ना? उसको फोकस होना चाहिए। फोकस मीन्स एक ही पॉइंट पर मेरी बात कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बट मेक इट ब्रॉड इंटरेस्ट जस्ट लाइक अ स्टोरी। कि आपका जो रीडर है, जो आपका पढ़ने वाला है, वो चाहे स्टूडेंट हो, रिसर्चर हो, आम कोई जो है पब्लिक है, ठीक है ना, वो उसको जो है आराम से इजीली समझ आ सके। बी क्रिटिकल एंड कंसिस्टेंट। ठीक है,
क्रिटिकली हम उसको जो है रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड आ लॉजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना, स्ट्रक्चर अभी हम डिस्कस करेंगे। मेक यूज ऑफ फीडबैक, क्या आपके पास इसका जो है फीडबैक किस तरीके से आपने लिया। इंक्लूड योर ओन रिलेवेंट रिसर्च बट बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना, कि जो आप उसको है मतलब उसको अपनी वर्डिंग्स में करके लिख रहे हैं। बी अप टू डेट बट डू नॉट फॉरगेट ऑल स्टडीज, ठीक है। मैंने कहा कि रिसेंट पेपर्स जो है वो ज्यादा ऐड करने हैं, लेस रिसेंट पेपर्स आप ऐड कर सकते हो, जस्ट लाइक मेकिंग अ बैकग्राउंड, ठीक है ना। अब अगर मैं 80s का या 90s का मैं कोई पेपर सिलेक्ट कर रही हूँ जिसमें मुझे डायबिटीज की इंफॉर्मेशन, वो डायबिटीज की मुझे डेफिनेशन चाहिए कि डायबिटीज क्या है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं कोई जो है अपना जो है ओल्ड पेपर सर्च करूंगी, उसको मैं ऐड ऑन करूंगी, ठीक है। बट फॉर जस्ट फॉर मेकिंग अ हिस्ट्री, जस्ट फॉर मेकिंग अ बैकग्राउंड। रिसेंट उसके लिए मैं न्यू अप टू डेट पेपर सर्च करूंगी, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं दिस, ठीक है ना, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रिव्यू आर्टिकल। सबसे पहले हो गया आपका टाइटल, टाइटल आ गया। देन लिस्ट ऑफ ऑथर्स who are going to write or who are the people, ठीक है ना, जिनके नाम हम उसमें ऐड करने जा रहे हैं। एक लोग एक भी एक अगर एक रिसर्च ने लिखा है, एक का नाम आएगा, दो तीन चार पांच एट ऑल, सही है। एब्स्ट्रैक्ट, देन टेबल ऑफ कंटेंट्स आ गया, ठीक है। फिर इसमें आपका जो है कंक्लूजन्स है, ठीक है। फिर आपका जो है इसमें जो सॉरी इंट्रोडक्शन आ गया। देन बॉडी मटेरियल्स एंड मेथड्स आ गया। फिर मेन पार्ट ऑफ रिव्यू आर्टिकल, देन इसमें जो है कंक्लूजन आ गया। फिर एक्नॉलेजमेंट आ गई, देन रेफरेंसेस, देन एनी illustrations or concept maps if you want to add. It's not a mandatory, ठीक है ना। If it is the part of your review article, you can add. If it's not, it's not mandatory, ठीक है। तो these are the components of your review article. Let's discuss one by one. Title. अब टाइटल में क्या है, द टाइटल मस्ट बी इंफॉर्मेटिव, टाइटल मस्ट बी इंटरेस्टिंग। if I'm going to read your title but it's not interesting, it's so boring or it's so irrelevant or it's so old version, so I'm not going to read your whole review article, even I'm not going to read your abstract. So title should be very informative, interesting. Okay, the title has to include important terms. It has to indicate that the text is a review article. Okay. टाइटल में ये बात मेंशन होनी चाहिए कि अंदर आपको कोई न्यू नॉवल रिसर्च नहीं मिलने जा रही है। यू आर गोइंग टू राइट जस्ट रिव्यू आर्टिकल, ठीक है। ये नहीं कि हमने टाइटल में बहुत वैसी वो एकदम से ब्लास्ट कर दिया, ठीक है ना, हम के हम भाई टाइटल ये तो है रिव्यू आर्टिकल, वो है ओरिजिनल आर्टिकल है बट अंदर क्या है, रिव्यू आर्टिकल है, ठीक है। तो इट मे इंक्लूड द मैसेज ऑफ द आर्टिकल, नॉट जस्ट इट्स कवरेज, ठीक है ना, कि आपके जो है आर्टिकल में क्या चीज आई एम गोइंग टू रीड। द टाइटल मस्ट बी शॉर्ट, short means keep the little concise. A longer suitable may be an option in case the specification is necessary. Just like these examples. ठीक है, novel nanoparticles, nano particulate system for of lung cancer therapy and updated review. This is the example of your title. ठीक है, what I'm going to do, I'm going to write or read a review article about novel nanoparticulate system for lung cancer. I have mentioned an updated review, ठीक है। आइडेंटिफाई द आर्टिकल्स एज अ सिस्टमैटिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस और बोथ, ठीक है ना, किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अच्छा, नीचे एक और एग्जांपल मैंने दी हुई है कि ग्रिफिन बेस्ड नैनो, ये जो आप कंपोजिट सिस्टम सिंथेसाइज एंड देयर, ये जो है आपका एंथ्रोपोमेट्रिक एप्लीकेशंस, ठीक है ना, दिस इज द टाइटल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सम गुड रिसर्च टाइटल, क्या क्या चीजें हम इसमें जो है ऐड कर सकते हैं।
A good title should be clear and interesting to the reader. Okay, क्लियर होना चाहिए, इसमें किसी किस्म के एम्बिग्यूटी ना हो, उसमें किसी किस्म की जो है कोई ऐसी हिडन मैसेज या हिडन बात ना हो कि जो है आपका रीडर सस्पेंस में पड़ जाए बेचारा, कहे कि ये पता नहीं क्या इतना मुश्किल कोई एम्बिग्यूटी कोई एम्बिगुएट बात लिखी है। ठीक है, तो इट शुड बी क्लियर, इट टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द राइटिंग। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया टाइटल, उसमें मैंने क्लियर लिखा है कि एन अपडेटेड रिव्यू। ठीक है ना, रीडर को पता है कि वो रिव्यू आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं इंस्टेड ऑफ अ ओरिजिनल रिसर्च। The title should be around 10 to 25 words, highlighting key aspects of the study. Okay ना? Avoid technical jargons and unnecessary words. ये नहीं कि बहुत तवील कर दिया, टू लेंथी टाइटल कर दिया और अल्फाजों को घुमा फिरा के वर्ड्स को से डिफरेंट टाइप्स के jargons। jargons क्या होता है? डिफरेंट लैंग्वेज वर्ड्स, डिफरेंट ऐसे वर्ड्स जो हम जो है अपनी लैंग्वेज में या फॉर्मल राइटिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, The title should contain important keywords. ठीक है, तो title should be very concise, and this is the example. Research title: Purification and characterization of the kinetic parameters of cellulase produced from wheat straw by Aspergillus niger and its salt tolerance. This is wrong. This is a very detailed and very ambiguous title. What is the correct title? Purification and biochemical characterization of cellulases produced by Aspergillus niger grown on wheat straw. ठीक है ना, this is a simple, concise, precise and interesting title. ठीक है, now moving forward, list of authors. Declare intellectual ownership of the work. Okay, now who is the owner of this work? Provide contact information. ये लाजमी है, ठीक है ना, कि आप जब उसको जर्नल में भेजेंगे तो व्हाट हु इज द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑथर। ठीक है, डिस्क्राइब ऑथरशिप एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि अक्सर औकात दो तीन फ्रेंड्स या रिसर्चर्स के बीच में झगड़े की वजह यही होती है। ठीक है, जो डिस्क्राइब ऑथरशिप पहले से ही डिस्कस कर ले कि हु इज गोइंग टू द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ और एट ऑल। ठीक है, एट ऑल में किसको जाना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसको आना है। ठीक है, क्योंकि फिर बाद में इसके बड़े जो है आपके पास जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो लिस्ट ऑफ ऑथर्स पहले से ही सेलेक्ट कर ले, एंड देन जो आपका कोरिस्पॉन्डिंग ऑथर से उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होती है। काफी इंफॉर्मेशन, नॉट एग्जैक्टली कॉन्टेक्ट नंबर और एनीथिंग, ईमेल एड्रेस, ठीक है ना, और योर ORC ID you can give. ठीक है, and then we write abstract. Inform about the main objectives and result of the review article. Okay, abstracts, we all know abstract is a summary of your article. ठीक है ना, हम चाहे ओरिजिनल आर्टिकल की बात कर रहे हैं, रिव्यू आर्टिकल की बात कर रहे हैं, थीसिस की बात कर रहे हैं, डिसर्टेशंस की बात कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट इज अ summary of your article. So inform about the main objective and result of the review article. Informative abstracts or indicate the text structure. Okay. फिर हम table of contents ऐड करते हैं इसमें, shows the reader the organization of the text. ठीक है ना, किस तरीके से आपने उसको जो है पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन, हमने एब्स्ट्रैक्ट दिया, इंट्रोडक्शन है मटेरियल्स एंड मेथड से किस तरीके से हम उसमें जो है चीजें ऐड करें। Then we write introduction. Provides information about the context, indicates the motivation for the review, define the focus, the research question and explain the text structure. ठीक है ना, अब इसके बेसिक एलिमेंट्स कौन से हैं? सब्जेक्ट, बैकग्राउंड, व्हाट इज डायबिटीज, व्हाट इज द प्रेवलेंस, ठीक है ना, किस तरीके से इस पर जो है काम हो रहा है, कितना काम हुआ है, व्हाट इज द डिटेल, व्हाट इज द जर्नल डिटेल। ठीक है, the general topic, issue or area of concern is given to illustrate the context. Here we come to problem. Okay, what is the problem in diabetes, in the disease of diabetes? क्या प्रॉब्लम है, मसला क्या है
कि इसके ऊपर इतना काम हो रहा है, या इसके ऊपर हम भी काम करने जा रहे हैं, या हम इसके ऊपर रिव्यू आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है, तो प्रॉब्लम में हम डिस्कस करेंगे न्यू ट्रेंड्स, के दिस इज द न्यू ट्रेंड्स इन डायबिटीज, के डायबिटीज में ये ट्रेंड आया है, या ये इसमें जो है इसकी जो है डिजीज में ये कर्व आया है। ठीक है, तो दिस इज द ट्रेंड्स न्यू perspective, can you what is the new perspective in diabetes, and then we can add in the problem what is the gaps, कि previous जो थे researchers उन्होंने इन पे जो है काम नहीं किया, but now I am going to work on these gaps, and what is the conflicts। ठीक है ना, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट था कि जो है डायबिटीज आपके पास ये जो है प्रॉब्लम लेकर आ रही है, बट इन अकॉर्डिंग टू आवर न्यू रिसर्च this conflict it has been resolved। ठीक है ना, तो what is the conflict, और a single problem is indicated। ठीक है ना, इसमें आप एक सिंगल प्रॉब्लम भी जो है इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स भी। एंड देन मोटिवेशन एंड जस्टिफिकेशन। ठीक है ना, द ऑथर्स रीजन फॉर रिव्यू द लिटरेचर। हमने पहले सब्जेक्ट बैकग्राउंड बताया, उसके बाद हमने बताया कि जो है प्रॉब्लम्स, कि जो है प्रॉब्लम क्या हुई, उसके बाद हमने बताया मोटिवेशन और जस्टिफिकेशन, कि why that we author's reason for reviewing the literature, the approach and the organization of the text and describe, कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, उसके बाद हम क्यों, why am I going to do the review article of this topic। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉब्लम्स, जो आपने ऊपर पैराग्राफ में जो प्रॉब्लम्स दिए हैं, अब उन प्रॉब्लम्स को आप जस्टिफाई करने जा रहे हो, या अपनी मोटिवेशन बताने जा रहे हो कि अकॉर्डिंग टू दीज प्रॉब्लम्स आई एम गोइंग टू रिजॉल्व दिस गैप्स, और आई एम गोइंग टू फिल दिस कॉन्फ्लिक्टेड। ठीक है ना, and I am to go and or I am going to discuss these new trends or new perspectives according to diabetes। ठीक है ना, which is the need of our society। Okay, so this is the introduction, and then materials and methods। As such, this is not a original article, so systematic and based evidence reviews have a method selection। ठीक है ना, systematic reviews में कि हमने जो है 100 रिसर्च पेपर्स लिए हैं, उसको हमने इस तरीके से सॉर्टेड आउट किया, इसमें से हमने जो है वो ये डेटा लिया, तो दिस इज अ सिस्टमैटिक रिव्यू। ठीक है, so systematic materials and methods। This section enables motivated researchers to repeat the review। ये आपको या जो आपके आगे आने वाले जो लोग हैं, जो फ्यूचर में इस पर वर्क करने जा रहे हैं, वो बताए, वो आप उनको बताएं कि अच्छा इस तरीके से आपने जो है अपने पेपर्स को चूज किया, अपने पेपर्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको इस तरीके से सिंथेसाइज किया। ठीक है, आपने ये वाले जो है इसमें सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, ये वाली वेबसाइट इस्तेमाल की। As I am told you before, narrative reviews do not have a method sections। ठीक है ना, क्योंकि narrative review में मैंने क्या बताया था, just like a story, just like a essay writing, but should include some information about applied methods at the end of the introduction। कि कुछ methods आपने जो है data collect किए। अब जो मेन पार्ट होता है आपके रिव्यू आर्टिकल का, वो होता है सेक्शन स्ट्रक्चर। A coherent structuring of the topic is necessary to develop the section structure। अब section structure में क्या है, subheading reflects the organization of the topic and indicate the content of the various sections। ठीक है ना, अब जो आपने वहां पर जो है subheadings जो है रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उसमें subheadings ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब subheadings के अंदर जो आपके टॉपिक है, उस टॉपिक को आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो। ठीक है ना, आपको जो पॉसिबल क्राइटेरिया, जैसे इसमें जो है मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस हो गई, कि कैसे आपने जो है इसके मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया हुआ था बाकी रिसर्चर्स ने, उसको आप कैसे वहां पर कर रहे हो, कौन कौन सी थ्योरीज इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है ना, या फिर उसमें जो है आप कौन से जो है सपोर्टिव आइडियाज एड ऑन कर रहे हो। पैराग्राफ स्ट्रक्चर, ये तो आपका सेक्शन स्ट्रक्चर अलग है, फिर उस पर उसी में ऐड होता है पैराग्राफ स्ट्रक्चर। पैराग्राफ स्ट्रक्चर मीन्स हम वन पैराग्राफ वन आइडिया, कवर वन आइडिया एस्पेक्ट और टॉपिक पर पैराग्राफ, यानी कि एक ही पैराग्राफ में सब आइडियाज भर दी, फिल कर दी उस पर तमाम। ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि जो आपका रीडर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसको एक स्पेस नहीं मिलेगा, तो जस्ट गिव अ स्पेस। ठीक है ना,
to your audience to and to understand your lines, ठीक है ना, your words, ठीक है। तो आपका एक पैराग्राफ, one paragraph is equal to one idea, ठीक है। Avoid referring to only one study per paragraph, ठीक है। Consider several studies per paragraph instead, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें, हम जब हमने रिव्यू आर्टिकल लिख लिया, अब रिव्यू आर्टिकल में हम जो है, जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो आंसर द रिसर्च क्वेश्चन सेट इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। जो आपने रिसर्च क्वेश्चन सेट किया था अपने इंट्रोडक्शन में, उसका आपको कंक्लूजन में आंसर देना है, ठीक क्या। व्हाट इज योर एंड पॉइंट, आपका एंडिंग पॉइंट क्या है। व्हाट इज योर गोइंग टू प्रूव विद दिस रिव्यू आर्टिकल, ठीक है ना। क्या आपने खाली रिव्यू आर्टिकल लिखा, इसको कोई प्रूफ नहीं था, तो व्हाट इज द प्रूफ ऑफ योर रिव्यू आर्टिकल एंड व्हाट आर यू गोइंग टू प्रूव, ठीक है। एलिमेंट्स जैसे implications of the findings, interpretations by the authors, ठीक है। जो आपने ऑथर्स को, जितने भी ऑथर्स के आपने पेपर्स लिए हैं, उनके फाइंडिंग से क्या आपने इंटरप्रेट किया, क्या आपका आपकी एक समराइज्ड वो क्या है, थिंकिंग क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनरिजॉल्व क्वेश्चंस, आपके जो उसमें अनरिजॉल्व क्वेश्चंस थे वो आपने उसमें जो है चेक किए, ठीक है। फिर इसमें आते हैं एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट इज अ पार्ट वेयर वी एक्नॉलेज आवर financier, our जो है different helping persons, expresses gratitude to people who help with the literature search, ठीक है ना। आपके it's can be your supervisor, your friend, your mentor, anyone. The structuring of the material or in the writing process, okay, maybe बहुत सारे जो है आपके पास जब हम अभी हमने बात की थी ऑथरशिप की, तो हमें जो है अक्सर औकात यूजुअली बहुत सारे लोग जो है हमें हेल्प आउट कर रहे थे, बट वी आर नॉट गोइंग टू ऐड इन द ऑथरशिप, वी ऐड these names in the part of acknowledgement, हम उनको एक्नॉलेजमेंट में ऐड कर देते हैं। अब चाहे किसी ने हमें जो है स्टेटिस्टिकली हेल्प आउट किया हो, किसी ने हमें जो है लिटरेचर सर्च करने में हेल्प आउट किया हो, expresses gratitude to funding organizations and specific funding program, ठीक है ना। अगर हम जैसे किसी भी इदारे से, किसी भी जो है हम एजेंसी से हमने फंडिंग ली भी है, तो उसको हम वहां पर एक्नॉलेज करने जा रहे हैं। देन वी आर गोइंग टू ऐड रेफरेंसेस, ठीक है। हम इसमें जो है रेफरेंसेस शोज इंटरेस्ट रीडर्स हाउ टू फाइंड द लिटरेचर मेंशन इन द टेक्स्ट, ठीक है, कि आपने जो टेक्स्ट में जो लिटरेचर ऐड किया है वो किस तरीके से जो है यहाँ पर आपको जो है हेल्प कर रहा है, और उसको आपने ऐड करना है रेफरेंस में। एक्नॉलेज द वर्क्स ऑफ अदर साइंटिस्ट, ठीक है ना। आपने उसी का ही काम लेके अपना रिव्यू आर्टिकल लिखा है, तो उसको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं। कंपल्सरी टू अवॉइड चार्जेस ऑफ प्लेजरिज्म, ठीक है, इससे आपको प्लेजरिज्म नहीं होगा, नहीं आपका एड ऑन होगा। अच्छा, अब if you are going to add any type of illustrations, जैसे मैंने कहा था कि it depends on your work। अगर आपका रिव्यू आर्टिकल ऐसा है कि जिसमें आपको किसी किस्म की इलस्ट्रेशंस ऐड करनी है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, तो you can add। concept maps are used in review articles to visualize the structure of the topic, ठीक है ना। उसमें आप कोई मैप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पिक्चर ऐड कर सकते हो टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन स्टडीज, कांसेप्ट, मॉडल्स और थ्योरीज, ठीक है ना। वॉट एवर यू illustrations you can add। अच्छा, दिस इज a summary how to write your first review article। First of all, conduct a thorough literature survey, or how to going to do literature survey from any authentic website, from any authentic source, ठीक है। थोरो लिटरेचर सर्वे करना है सबसे पहले। स्टेट योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियरली, सबसे पहले अपना प्रॉब्लम मीन्स रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है ना, उसको जो है क्लियरली मेंशन करना है। अच्छा, अक्सर होगा जो जब हम टाइटल लिखते हैं, तो टाइटल यू कैन चेंज द टाइटल आफ्टर द राइटिंग प्रोसेस, ठीक है ना। पहले हमने टाइटल लिखा, वो टाइटल कोई मजा नहीं कर रहा,
ठीक है ना, टाइटल समझ नहीं आ रहा या टाइटल बहुत लेंदी हो गया, तो यू कैन चेंज योर टाइटल, ठीक है ना. बट इफ यू आर गोइंग टू अ रिव्यू आर्टिकल, if you are going to write your thesis, your dissertation, you are not going to change your title. ठीक है ना, it is officially, ठीक है ना, उसके लिए फिर it's a very lengthy process to change your title. But if you are going to a review article, your research article, you can change or any edit on your topic. Okay, okay. So state your problem statement clearly without any type of ambiguity. Because if you have any ambiguity, what are you going to do, deliver to your reader? ठीक है, जब हम लिखने वाले ही एम्बिग्युइटी का शिकार होंगे, एक एम्बिग्युइट में होंगे, एक कंफ्यूज होंगे टॉपिक को लेके, तो हम रीडर तक अपनी बात क्लियर वे में नहीं कन्वे कर सके. ठीक है, इंक्लूड टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंडेक्स, इंट्रोडक्शन, ठीक है, बिब्लियोग्राफी और कॉर्पस में तमाम चीजें इसकी जो हमने बताया, मटेरियल, मेथड्स, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस हमने ऐड कर दिया. मेंशन मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड इक्विपमेंट यूज, क्या क्या चीजें हमने इस्तेमाल की. देन साइट करेक्ट एक्यूरेटली, लिमिट बायस एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ वीकनेस ऑफ द स्टडी. साइट करेक्टली, जो हम रेफरेंसेस ऐड कर रहे हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, ठीक है ना. और लिमिट बायस, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा, अब जैसे सपोज एक टॉपिक है, सोशल टॉपिक की अगर हम बात करें, द यूज ऑफ सोशल मीडिया, ठीक है ना, कैन hazards in our young gen is hazardous to our young generation. This is a biased topic, ठीक है ना. Some people think it's not, some people think yes, the social media is very harmful for our young generation. Some people think this is a new technology and we should use, or we can utilize the adopt new technology. ठीक है, तो दिस इज अगर हम जो है बहुत ज्यादा उसमें बाइस हो जाएंगे तो क्या होगा, हम जो है उसको हम एक क्रिटिकली एक हम उसको एक बेहतर तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सके, या उसको बेहतर तरीके से वो रिजल्ट अपने अपने रीडर को नहीं दे सकेंगे अगर हम प्योरली उसमें बाइस हो. वी हैव टू बी अ न्यूट्रल पर्सन, वी हैव टू बी अ फैक्चुअल पर्सन, ठीक है ना, हमें फैक्ट को वहां पर बताना है. ठीक है, टू साइड द बायसनेस को साइड में रखकर जो आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स आ रहे हैं उसको वहां पर मेंशन करना है. एंड विद द आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ और वीकनेस टू योर स्टडी. वी हैव टू नो व्हाट इज द वीकनेस and what is the strength of my study, because I am going to defend my review article with the publisher, with the journal, with the audience. Okay. Acha, preparing review articles in 18 steps. First of all, prepare, develop structure, write draft, then revise. ठीक है ना. Prepare, narrow topic, define research question. ठीक है, narrow topic means क्या, broad topic था डायबिटीज, उसको मैं नैरो में लेकर आई. ठीक है, मीन्स के उसको मैंने अपने रिसर्च कोर्सेस के मुताबिक कंसाइज कर दिया, प्रिसाइज कर दिया. ठीक है, फिर देन रिसर्च फॉर लेट सोर्सेस, जो सोर्सेस थे. अभी मैं आई एम जस्ट गोइंग टू द प्रिपेयर. ठीक है, ये 18 स्टेप्स हैं जिसके जरिए हम जो है एक रिव्यू आर्टिकल प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, दिस इज द होल समराइज फॉर्म. ठीक है, रीड, इवेलुएट, क्लासिफाई एंड मेक नोट्स. अब जो मेरे पास रिसर्च क्वेश्चन, जो रिसर्च पेपर्स हैं उसको मैं रीड कर रही हूँ, एवेल्युएट कर रही हूँ, क्लासिफाई कर रही हूँ, क्लासिफाई मींस कस्टमाइज कर रही हूँ. ठीक है, आई एम गोइंग टू कस्टमाइज दीज ऑल रिसर्च पेपर्स एंड मेक नोट्स, देन रीडिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस. ठीक है ना, पहले जो हमने जो है डिफाइन रिसर्च क्वेश्चंस किया था, मे बी हमने जो इतने सारे पेपर सब पढ़े हैं उसके बाद हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, तो इट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है, एंड देन डेवलप स्ट्रक्चर, कंपोज आर प्रिलिमिनरी टाइटल. ठीक है ना, अभी हमने एक प्रिलिमिनरी टाइटल सजेस्ट किया है, चूज किया है. ठीक है, देन फाइंड स्ट्रक्चरिंग प्रिंसिपल ऑफ फॉर आर्टिकल, जिसके मैंने अभी तमाम बताया कि किस तरीके से उसको लिखना है. प्रिपेयर आउटलाइन
हेडिंग्स फॉर सेक्शंस, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन का हेडिंग हो गई, मटेरियल मेथड्स हो गया, रिव्यू आर्टिकल हो गया, आपका जो है कंक्लूजन हो गया, दीज आर द योर आउटलाइंस और हेडिंग्स, ठीक है। एंड देन प्लान द कंटेंट ऑफ ईच पैराग्राफ, ठीक है। अब ईच पैराग्राफ को कैसे प्लान करना है, ठीक है ना, वो आपको पूरा डेवलप करना है। देन प्रिपेयर टेबल्स ऐड करने जा रहे हो, कॉन्सेप्ट्स ऐड करने जा रहे हैं, मैप्स है, फिगर्स है। So this is the steps of your developed structures, and then write draft. First you write a draft, ठीक है। Draft the method sections. Introduction का draft लिखा, ठीक है। Then draft the body sections, ठीक है ना, जो जो भी आप पार्ट करते जा रहे हो सबको ड्राफ्ट में लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कंक्लूजन का ड्राफ्ट लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, एब्स्ट्रैक्ट लिखा, राइट ड्राफ्ट। फिर देन उसको रिवाइज किया, ठीक है। रिवाइज ड्राफ्ट, एब्स्ट्रैक्ट टाइटल्स, टेबल्स, फिगर्स, तमाम जितनी चीजें थी, साइटेशंस को रिवाइज किया, ठीक है ना। उसमें चेक किया कि जो है किसी किस्म की जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, एनी टाइप ऑफ उसमें जो है एडिटिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन एडजस्ट द लेआउट, फिर जो आपका लेआउट है उसको आपने वहां पर एडजस्ट कर लिया, ठीक है। So these are the steps of your writing. अच्छा, अब हम जो है where do I look for resources of my literature review, हम कहाँ से जो है इसके resources को get करें। These are the सब examples, जैसे हम जो है Google Scholar हो गया, Scopus हो गया, ठीक है, PubMed हो गया, Science Direct हो गया। तो we are going to discuss this topic tomorrow. Okay, tomorrow our topic is where do I look for resources for my literature review. We will discuss some AI tools, artificial intelligence tool, where we get to collect some authentic literature review for our review article. Okay, so this is for today. Okay. Can we add is I'm going to discuss some questions here. Can we add literature review articles of a similar topic in our literature review? I can understand this question. Can we add literature review articles of similar topic in our literature review? Yes. आप literature review में, if you are going to write any literature review, so you are going to add the similar topic. If you are going to write a literature review about HIV, so you are going to add the same similar topics of HIV in your literature review. If you are anything asking Safia Nas, so you can elaborate your question if I am not unable to understand. Okay. Best tool for generate graphs and tables for review papers. Best tools for generate graphs. You can use your different types of now AI tools is available, or you can use our favorite Excel tools. We will discuss tools for different types of AI. We will discuss tomorrow. हम कल जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जो है रिसर्च राइटिंग या जो है अपनी ये अपना रिव्यू आर्टिकल्स को लिखने के लिए, ठीक है। ओके, सो if you don't have any questions right now, so you can write your question. We can discuss it tomorrow as well. For discussing a disease, should we add an epidemiological perspective too? For instance, my work has been for cervical cancer. Yes, you can. It depends on your topic. What are you going to write? अगर आपका टॉपिक है कि इसमें आपको जो है सिर्फ प्रिवलेंस लिखना है
या यू आर गोइंग टू सर्च ओनली अबाउट द रेशियो बिटवीन जेंडर, या आपको जो है सीजनल प्रिवलेंस देखना है, सो आपको सबसे पहले अपना टॉपिक देखना है कि आपका टॉपिक क्या है, फिर आप उसके मुताबिक अपने जो है पेपर्स में ऐड करोगे कि आपका टॉपिक है भी कैसा, कि उसमें उसमें आप डिफरेंट जो है एपिडेमियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को या एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को करना है या नहीं करना। अभी मैंने कहा ना कि डोंट फिल योर पेपर विथ अननेसेसरी थिंग्स। आपका जो टाइटल है, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन, इफ योर रिसर्च क्वेश्चन इज इंडिकेटिंग दैट यू आर गोइंग टू ऐड द एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इन योर रिव्यू आर्टिकल, you must write. But if you are not going to add in your introduction, or if you are not going to add in your title, so it's not necessary. ठीक है ना? तो आपको जो टाइटल, आपको जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है, आपको उसी के मुताबिक काम करना है। उसमें ज्यादा अगर देखें पेपर्स को हम सर्च करते हैं, उसमें हमें, मैंने कहा ना, अननेसेसरी थिंग्स मिल जाती हैं। एक पूरा समंदर है पेपर्स का, इज द सी ऑफ द जो है रिसर्च पेपर्स। उसमें से हमें अपने मुताबिक चीजें निकालनी है, चीजें खंगालनी है, चीजें फिल्टर आउट करना है। ठीक है ना? तो फिल्टर आउट हम कैसे करेंगे? जो हमारा रिसर्च क्वेश्चन है उसको मद्देनजर रखेंगे, उसको सामने रखेंगे, उसके कीवर्ड्स लेंगे। कीवर्ड्स क्या है मेरा? एपिडम epidemiological study of डायबिटीज और डायबिटिक फूड इन्फेक्शन। ठीक है ना? या हम जो है इस पर स्टडी करें, तो ये मेरा की फैक्टर है। मैं अपने की फैक्टर्स को देखते हुए फिर मैं अपना जो है डेटा कलेक्ट करूँ। ठीक है ना? बहुत सारा डेटा आप कलेक्ट कर लेंगे, बहुत सारा डेटा लेकर बैठेंगे, यू विल गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है? तो अपने अपने टारगेट, आपका टारगेट क्या है? आपका टाइटल। ठीक है ना? योर टाइटल इज योर टारगेट, उसमें ऐड करना है, उसके मुताबिक ऐड करना है, यू मस्ट ऐड। ठीक है ना? वरना डोंट गेट कंफ्यूज योरसेल्फ। कैन अ सिंगल पर्सन कैन राइट अ रिव्यू आर्टिकल? श्योर, बिल्कुल, विदाउट इन्वॉल्विंग एनीवन एल्स, बिल्कुल, श्योर श्योर। आपका एक सिंगल पर्सन भी जो है रिव्यू आर्टिकल लिख लिख सकता है। ठीक है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि एक सिंगल पर्सन रिव्यू आर्टिकल नहीं लिख सकता। ठीक है? Tomorrow I will share some example of a review article, my रिव्यू आर्टिकल। ठीक है? जो मैंने कुछ रिव्यू आर्टिकल्स लिखे हैं, कल वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। ठीक है? ताकि आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा उसके फॉर्मेट का, कि किस तरीके से हमें जो है रिव्यू आर्टिकल को लिखना है। अभी तो मैंने आप लोग को एक पूरा प्लान बताया कि किस तरीके से एक स्कीम होती है, कैसे कि उस स्कीम के तहत हम रिव्यू आर्टिकल लिखते हैं। कल आप लोग के साथ में थोड़े से जो है ना उसके कुछ फॉर्मेट्स, कुछ रिव्यू आर्टिकल्स में निकाल कर उसको मैं डिस्कस कर लूंगी। ठीक है? ताकि आप लोग के पास एक क्लियर भी हो जाएगा कि अच्छा रिव्यू आर्टिकल्स में हम इसको ये चीजें लिखते हैं, ये लिखते हैं। अगर हमें कोई पिक्चर ऐड करनी है तो कहाँ ऐड करनी है, कैसे ऐड करनी है। ठीक है? टुमारो वी विल डिस्कस द बोथ थिंग्स, एआई यूज एंड देन सम फॉर्मेट्स ऑफ रिव्यू आर्टिकल। ठीक है? उससे आप लोग को बहुत हद तक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। If we need to add diagram on article, where we find it? You can find it in different research papers. ठीक है? आप जो रिसर्च पेपर्स ले रहे हैं उसी में ही आपको जो है डायग्राम मिल जाएंगे। और इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर और मेक सम योर ओन डायग्राम, यू कैन मेक योर ओन ओन डायग्राम। अब तो उसकी भी इतनी सारी एआई की टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं कि हम अपनी जो है डायग्राम्स हो गई, ग्राफ्स हो गए, अपने जो है लेआउट्स हो गए, बार्स हो गए, चार्ट्स हो गए, वो हम खुद भी जो है डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इफ यू आर गोइंग टू ऐड एनी डायग्राम, एनी टाइप ऑफ जो है इलस्ट्रेशन फ्रॉम द रिसर्च पेपर, यू हैव टू ऐड द रेफरेंस। ठीक है? पिक्चर के साथ भी, डायग्राम के साथ भी रेफरेंस ऐड करना लाजमी है। ठीक है? वरना क्या होगा? वरना वो आपका जो है उसमें जो है प्लेजरिज्म में चला जाएगा। ठीक है? कल ये मैं दिखाऊंगी। ऐसे मेरा एक रिव्यू आर्टिकल है, उसी में मैंने पिक्चर भी ऐड की हुई है। ठीक है? तो नीचे मैंने उसका उसका जो है रेफरेंस दिया हुआ है। ठीक है? वो आप लोगों को, विच इज बेटर टू ऐड इन द रिव्यू आर्टिकल, ग्राफिकल और रिटन एब्स्ट्रैक्ट? रिटन एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है ना? रिटन एब्स्ट्रैक्ट इज गुड टू ऐड इन द रिव्यू आर्टिकल। ओके? ठीक है? Please, if you have any further questions, you can write in your notebook for tomorrow. So we can discuss in the tomorrow sessions. ठीक है ना? फिर
And tomorrow we will discuss AI tools and some formats of review article. Okay. Okay. And it's time to leave. So much, ma'am. And students, we will continue this lecture from here tomorrow. And for- Sorry, Atik sir, what are you going to say? I'm saying thank you so much, ma'am. Thank And you. I'm saying to students, we will continue this lecture from tomorrow from here. And Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.